Hello students. So today we are going to discuss about the first phylum of animal kingdom, that is phylum Sponges. Okay. So today we will talk about the general and basic characteristics of phylum Sponges. I will make two lectures of phylum Sponges. Okay, in order to cover up the entire portion of the sponges. Today is your first lecture. Next lecture I will upload very soon. Okay. So today we have phylum Sponges in our discussion. The sponges are also called as, they are also called as what? They are also called as spore bearers. Okay, so they are also called as spore bearers, or else you can also call them as sporifera. Okay, so these are some alternate names of phylum Sponges, and from this alternate name we can bring out that idea that why this animal has got such name. This animal has got such name because in the body of this particular animal it has what? Numerous pores present. Okay, numerous pores are there, just like a sponge, the normal sponge that you see in your home. Just like a normal sponge, this animal sponges also have numerous pores present in its body. Now what those pores do in their body, or what is the function of those pores in their body, that we will study when we come under the column which is called as their body plan. Okay, so when we come under the portion called body plan, after I finish up these headings that I have written in the board, after I finish this, then the next thing that we are going to study is body form, and in the body form we are going to know that what is the significance of those pores in the body of the sponges. Okay, so total number of species discovered till date. So how many sponges did we find till date? How many sponges did the taxonomist or scientist find till date? Okay, it is around 5,000 in numbers. So 5,000 in numbers is the total number of sponges that we have discovered till date. Here I would like to write approximately. Okay, study. Okay, the study of sponges. The study of sponges will be called as what? The study of sponges is called as parazoology. Okay, that is what the study of sponges is called as. It is the only phylum without nerve cell. This point we have already discussed in the basis of classification when we divided the metazoa into two groups, parazoa and eumetazoa. In parazoa we have seen that in that group only sponges was there, and sponges एक ऐसा animal है जिसमें क्या हो जाएगा, locomotion and nerve cells का presence is absent. Okay, holozoic mode of nutrition is there, so that we have already discussed in the basis of classification. The next one is habitat and the next one is habit. There is a very slight difference between the habitat and habit. Habitat माने कहाँ रहता है, habit माने कैसे रहता है. So habitat में we will write that there are some, first point that we will write is that these animals are aquatic exclusively. That means there is no any sponge that lives in what condition? Terrestrial condition. All the sponges, all the number of species that we have discovered, all of them live where? All of them live in aquatic condition. And when we talk about aquatic condition can certainly be of how many types? It can be of two types. One is what? Fresh water. There will be some organism which lives in fresh water like our pond, and then there will be some sponges which will live in what kind of condition? They will live in marine water. So some will live in fresh water, some will live in marine water. Okay, now if I give you some examples, so in fresh water we will get the examples of what? Spongilla. Whereas in marine water, if I write an example, it can be cycon, it can be grantia. Okay, so these are some sponges which lives in marine water. Okay, habit कैसे रहता है? So habit में what we will get, that these organisms are what? These organisms are sessile. Okay, now what does this word sessile means? You will get many such words whenever we will talk about habit in different phylum. You will get many such words like sessile, sedentary, free living. Free living माने
आराम से मूवमेंट कर सकता है, आराम से लोकोमोशन कर सकता है, एक जगह से दूसरा जगह आराम से जा सकता है। दैट इज फ्री लिविंग, फ्री स्विमिंग, इसका मतलब ये होता है, ठीक है ना। फ्री लिविंग का एक और मतलब भी होता है, फ्री लिविंग का मतलब अपना खाना खुद मैनेज करता है, ओके। फ्री स्विमिंग का मतलब वो आराम से मूव कर सकता है, एक जगह से दूसरा जगह आराम से जा सकता है, ओके। सेसाइल का मतलब क्या है? सेसाइल का मतलब है व्हेन एन ऑर्गेनिज्म इज अटैच्ड टू द सबस्ट्रेटा ऑफ द वाटर बॉडी। जो भी वाटर बॉडी में वो रहता है, चाहे वो पोंड में रहता है, लेक में रहता है, ओशन में रहता है, वेयरएवर इट लिव्स, द सबस्ट्रेटा ऑफ दैट पर्टिकुलर पोंड, पर्टिकुलर ओशन, पर्टिकुलर लेक, व्हाटएवर इज द सबस्ट्रेटा। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज सबस्ट्रेटा। एकदम नीचे का जो क्या बोलते हैं इसको, नहीं पता हिंदी में क्या बोलेंगे, आई डोंट नो, ओके। सबस्ट्रेटा मतलब एकदम बॉटम ऑफ द लेक, बॉटम ऑफ द पोंड। सो उस सबस्ट्रेटा के साथ क्या हो जाएगा, ये एनिमल वहां पे जुड़ा हुआ रहेगा, चिपका हुआ रहेगा, ओके। दिस काइंड ऑफ कंडीशन इज कॉल्ड एज अ सेसाइल कंडीशन। नाउ सेसाइल तुम लोग को समझ में आया, व्हेन एन एनिमल इज अटैच्ड टू द सबस्ट्रेटा ऑफ द वाटर बॉडी, दैट इज सेसाइल। सेडेंटरी का मतलब क्या होता है, व्हेन एन एनिमल इज अटैच्ड टू द सबस्ट्रेटा बट दैट अटैचमेंट इज अ टेम्पोरल अटैचमेंट। समझ में आया ना। एक एनिमल पकड़ लो, ये कोई वाटर बॉडी है जिसमें ये वाटर है, ठीक है ना। तो ये जो जगह है, दिस इज द बॉटम ऑफ दिस वाटर बॉडी। तो ये जो बॉटम ऑफ द वाटर बॉडी है, इसको हम लोग क्या बुलाएंगे, इसको हम लोग बुलाएंगे सबस्ट्रेटा, है ना। तो ये जो सबस्ट्रेटा है, इस सबस्ट्रेटा में मैं बोल रहा हूं कोई एनिमल बोले यहाँ पे, ऐसा बोले कोई एनिमल है जो यहाँ पे परमानेंटली अटैच है, परमानेंटली अटैच, वो यहाँ से कभी नहीं हटेगा, उसको हम लोग क्या बुलाएंगे, सेसाइल। अगर कोई एनिमल है वो यहाँ पे रह रहा है फॉर सम टाइम, जब तक उसको खाना मिलेगा, जब तक उसको उसका सुइटेबल कंडीशन मिलेगा, तब तक ये ऑर्गेनिज्म सबस्ट्रेटा के साथ चिपका रहेगा। जब सुइटेबल कंडीशन नहीं मिलेगा तो इस ऑर्गेनिज्म में ये एबिलिटी है कि वो अपना अटैचमेंट यहाँ से तोड़ेगा और तोड़ के इस जगह से मूव करके कोई और जगह जाएगा, जाके वहां पे सेटल हो जाएगा। ये जो कैरेक्टर है, इस कैरेक्टर को हम लोग सेडेंटरी बोलते हैं, जो हम लोग को नेक्स्ट फाइलम में मिलेगा, फाइलम सिलेंडरेटा में मिलेगा, ठीक है। तो सेसाइल माने which is permanently attached to the substrata, sedentary means which is temporarily attached to the substrata but it can move as per its suitable condition, okay। and free swimming का मतलब है वो अटैच नहीं है सबस्ट्रेटा के साथ, आराम से एक जगह से दूसरा जगह स्विम करके जा सकता है। तो ये है 3 टाइप्स ऑफ हैबिट जो हम लोग को आगे जाके और भी अलग अलग फाइलम में अलग अलग मिलेगा। फिलहाल ये जो फाइलम हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, इसका हैबिट कैसा है, इसका हैबिट है सेसाइल। और सेसाइल का मतलब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, सेसाइल का मतलब क्या है, व्हेन एन ऑर्गेनिज्म इज परमानेंटली अटैच्ड टू द what, when the organisms are permanently attached to the substrata। ये है सेसाइल का मीनिंग, ओके। हैबिटेट का एक और रूप भी है, रूप इन द मतलब एक और फॉर्म भी है, एक और बेसिस भी है, और वो बेसिस है कि एक ऑर्गेनिज्म, हैबिट तो मतलब वही है कि एक ऑर्गेनिज्म कैसे रहता है। अब कैसे रहता है में 2 चीज हो सकता है, एक कि उसका फिजिकल अटैचमेंट कैसा है, ठीक है। तो फिजिकल अटैचमेंट जो एकदम परमानेंट है तो सेसाइल, टेम्पोररी है सेडेंटरी, कोई अटैचमेंट नहीं है, फ्री स्विमिंग। ये तो एक हुआ। एक और बेसिस है हैबिट का, एक और बेसिस है। बेसिस ये है कि ये जो इंडिविजुअल्स है, ठीक है ना, ये इंडिविजुअल्स कैसे रहते हैं, अकेला रहता है, कॉलोनी बना के रहता है, कैसे रहता है, ठीक है ना। तो कोई ऑर्गेनिज्म है कि वो अकेले रहता है, वो कोई कॉलोनी में नहीं रहेगा, वो किसी और के साथ नहीं रहेगा, उसको अकेला रहना पसंद है। उस तरीके का हैबिट को हम लोग क्या बुलाते हैं, उस तरीके के हैबिट को हम लोग बुलाते हैं सोलिटेरी। सोलिटेरी का मतलब व्हेन एन ऑर्गेनिज्म लिव्स अलोन, इट डज नॉट फॉर्म्स एनी ग्रुपिज्म, ठीक है, या फिर वो एक कॉलोनी बना के रहना नहीं चाहता, वो अकेला है और अकेले ही अपना जितना भी नीड्स है उसको वो फुलफिल कर रहा है, इसको हम लोग बुलाते हैं सोलिटरी। एंड देन देयर इज अनदर वन जो है कॉलोनियल। कॉलोनियल का माने व्हेन द ऑर्गेनिज्म लिव्स इन अ ग्रुप, इन अ झुंड, ओके, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, कॉलोनियल। सो हम लोग इन केस ऑफ स्पॉन्जेस हम लोग दोनों चीज देखते हैं। हम लोग देखते हैं दैट देयर आर सम स्पॉन्जेस व्हिच आर सोलिटरी एंड देन वी सी देयर आर सम स्पॉन्जेस व्हिच आर कॉलोनियल, ओके। ये चीज सोलिटरी, दैट मीन्स lives alone in a habitat, जो भी हैबिटेट में रहता है, चाहे वो फ्रेश वाटर हो, मेराइन वाटर हो, अकेले रहेगा। तो सोलिटरी का अगर हम लोग एग्जांपल लिखें
तो सोलिटरी के एग्जाम्पल में हम लोग को कौन मिलने वाला है, स्पॉन्जिला मिलने वाला है। एग्जाम्पल्स में सेम रखने का कोशिश कर रहा हूं। जबकि कॉलोनियल अगर हम लोग देखें, कॉलोनियल माने व्हिच लिव्स इन ग्रुप। ओके, यहाँ पे मैं लिख देता हूं लिव्स इन अ ग्रुप। तो लिव्स इन अ ग्रुप में अगर मैं एग्जाम्पल देखूं तो एग्जाम्पल में मुझको साइकॉन मिलेगा, ठीक है, एग्जाम्पल में मुझको साइकॉन मिलेगा, ल्यूकोसोलेनिया मिलेगा, यू स्पोंजिया मिलेगा। ये सब है जो कॉलोनियल टाइप का होता है, एक साथ बहुत सारा ऑर्गेनिज्म साथ में रहता है, ठीक है। ओके, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो मैंने क्या बोला था, देखो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन को अगर अच्छे से पढ़ लो तो जब हम लोग फाइलम में आएंगे तो बहुत सारा कैरेक्टर ऑलरेडी डिस्कस रहेगा। सो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हम लोग यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में, यहाँ पे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग लिखेंगे क्या, सेलुलर, LOO, खत्म, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ लिया है। इनका बॉडी क्या होता है, सिर्फ सेल से बना हुआ होता है। मैंने एक्सप्लेन किया है कि सिर्फ सेल से क्यों बना हुआ होता है, क्यों टिश्यू नहीं बन पाता है, इवन बीइंग अ मल्टी सेलुलर, ठीक है, वो मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं। सो इनका सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। नेक्स्ट है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इनका कैसा है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इनका है सेलुलर एग्रीगेट्स। हम लोगों ने देखा कि इसका जो बॉडी है वो कैसे फॉर्म होता है, बहुत सारा सेल्स आके एक साथ जुड़ जाता है और जुड़ने के वजह से इनका बॉडी बनता है। लेकिन वो बॉडी जो है वो सेलुलर एग्रीगेट्स होने के वजह से हम लोगों ने ये भी देखा कि सेलुलर एग्रीगेट होने के वजह से इनका बॉडी जो है, इनका बॉडी एसिमेट्रिकल टाइप का हो जाता है। दैट मींस नो प्रॉपर शेप, नो प्रॉपर साइज, नो प्लेन कैन कट द बॉडी इनटू टू इक्वल हाफ्स पासिंग थ्रू द सेंट्रल एक्सिस ऑफ इट्स बॉडी, ठीक है। तो वो सेल एग्रीगेशन होने के वजह से उसका बॉडी एसिमेट्रिकल टाइप हो जाता है। ये है इसका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, माने बॉडी कैसे ऑर्गेनाइज है, ऐसे ऑर्गेनाइज है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग मूव कर रहे हैं बॉडी फॉर्म में कि इनका बॉडी फॉर्म कैसा है, ठीक है। सेल एग्रीगेशन होता है, मल्टी सेलुलर एनिमल है, एसिमेट्रिकल बॉडी है, लेकिन फिर भी एक रफ आउटलाइन कि बॉडी कैसा है, बॉडी का कौन सा लेयर क्या है, बॉडी का कौन सा पार्ट क्या कर रहा है, ये अभी हम लोग को समझ में आएगा। पॉज करके यू कैन मेक द नोट्स, ओके। मैं अभी इसको रब कर दूंगा और डायरेक्टली हम लोग बॉडी फॉर्म से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट देयर बॉडी फॉर्म। इनका बॉडी देखने में कैसा होता है या बॉडी का, ठीक है, आउटलाइन कैसा होता है, क्या क्या लेयर्स है नहीं है वो देखेंगे। तो अगर हम लोग एक स्पॉन्ज को देखें तो एक स्पॉन्ज देखने में कुछ ऐसा होगा, ठीक है, कुछ ऐसा टाइप का होगा। अभी तुम लोग को लग रहा है अगर ऐसा टाइप का हुआ तो इसको हम लोग को क्या बुलाना चाहिए था, ब्लाइंड सेक बुलाना चाहिए था, लेकिन हम लोगों ने इसको ब्लाइंड सेक बोला नहीं है। इसको हम लोगों ने सेल एग्रीगेट बोला है, ठीक है ना। ब्लाइंड सेक में हम लोगों ने इसको डाला नहीं था बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में, लेकिन देखने से तो ब्लाइंड सेक ही लग रहा है, वन ओपनिंग, ठीक है कि नहीं। तो इसका आंसर क्या, इसका आंसर है ये। इसको क्या बुला रहे हैं, पोर बियरर्स। काय को बुला रहे हैं, क्योंकि इसका जो ये बॉडी वाल दिखाई दे रहा है कि नहीं, ये जो बॉडी वाल दिखाई दे रहा है, ये बॉडी वाल में प्रेजेंट रहेगा इस तरीके का सेवरल, क्या बॉडी वाल में प्रेजेंट रहेगा इस तरीके का सेवरल पोर्स, ठीक है। एंड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस पोर्स इन इट्स बॉडी वाल इट इज कॉल्ड एज व्हाट, पोर बियरर्स, ओके। तो अभी अगर हम लोग देखें तो ये जो पोर्स मैंने यहाँ पे बनाया है, ये पोर देखने में कुछ ऐसा ऐसा टाइप का होगा, ये जो पोर्स दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये तो मैंने कुछ ही पोर्स बनाया है, इस तरीके का बहुत सारा पोर्स इनके बॉडी में प्रेजेंट होता है। यहाँ पे जस्ट आई हैव मेड फ्यू, ओके। सो ये जो पोर है, ये जो एक पोर हम लोग को दिखाई दे रहा है, इस पोर को हम लोग क्या बुलाते हैं, दिस पोर को हम लोग सिंगुलर लेवल पे हम लोग इसको बुलाते हैं क्या, ऑस्टियम। एंड यू कैन कॉल इट ऑस्टिया एट द प्लूरल लेवल, ओके। ये जो पोर तुम लोग को दिखाई दे रहे हैं, सिंगुलर, एक सिंगल पोर, ऑस्टियम। All these pores collectively can be called as ostia, and due to the presence of these pores in their body wall, they are called as pore bearers, ठीक है। आई होप ये समझ में आया है। अच्छा, और भी कुछ कुछ स्ट्रक्चर्स हम लोग को इसके बॉडी में दिखाई दे रहा है। क्या, ये जो पार्ट है इसके बॉडी का, ये जो पार्ट है, इस पार्ट में प्रेजेंट रहेगा इस तरीके का एक डिस्क के जैसा रीजन, है ना। अभी हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग इसको
डायरेक्टली ऐसे देख रहे हैं, इसके वजह से हम लोग को नीचे से दिखाई नहीं देगा। अगर नीचे से अगर हम लोग देखते तो हम लोग को एक राउंड डिस्क जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है, ठीक है। और ये जो डिस्क है, इस डिस्क का नाम क्या है? इसका नाम है बेसल डिस्क। और ये बेसल डिस्क के मदद से ये क्या होता है? ये रहता है अटैच टू दी सबस्ट्रेटा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये बेसल डिस्क जो है ये होता है एडहेसिव नेचर का। और किसी किसी स्पॉन्ज में तो ऐसा है कि ये जो बेसल डिस्क है वो बेसल डिस्क से कुछ कुछ सेल्स के जैसा निकलता है, वो प्लांट के रूट्स के जैसा टाइप लगता है और वो सबस्ट्रेटा को पकड़ लेता है। समझ में आया ना? ये जो बेसल डिस्क रीजन है, यहाँ से कुछ सेलुलर आउटग्रोथ निकलता है एंड दोज आउटग्रोथ विल होल्ड द सबस्ट्रेटा सो दैट दे गेट दैट परमानेंट अटैचमेंट टू द सबस्ट्रेटा। ओके, सो ये बेसल डिस्क हम लोग को बाद में भी मिलेगा, हम लोग को सिलेंडरेटा में भी मिलेगा, बट दिस इज व्हाट इट इज। ओके, अच्छा, अदर देन दिस हम लोग को अंदर, ये जो अंदर का जगह है ये कैविटी जैसा लग रहा है, ठीक है ना, एक खाली जगह जैसा लग रहा है। तो ये जो अंदर का जगह है, इस अंदर के जगह को हम लोग क्या बुलाते हैं? इस अंदर का जगह is called as पैरागैस्ट्रिक कैविटी, ठीक है। इसको पैरागैस्ट्रिक कैविटी बुलाएंगे, गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी नहीं बुलाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई डाइजेशन नहीं होने वाला है। ये जो बीच का जगह है, तुम लोग बोल सकते हो कि ब्लाइंड सेक में हम लोगों ने गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी डिस्कस किया था, और ब्लाइंड सेक में क्या उसमें डिस्कस किया था ना, जिसमें वो डाइजेशन समझाया था, मोड ऑफ डाइजेशन, बोथ इंट्रासेलुलर एक्स्ट्रा सेलुलर, उसमें मैंने समझाया था गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी क्या चीज है। तो यहाँ पे इस कैविटी को हम लोग गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी नहीं बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई डाइजेशन नहीं होगा। इसको हम लोग पैरागैस्ट्रिक कैविटी बुलाते हैं। और दिस पोर्शन कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज व्हाट? इसको तुम लोग स्पॉन्जोसील करके भी बुला सकते हो, ठीक है। ये जो एक रिंग लाइक जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इस रिंग लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बुलाते हैं? दिस रिंग लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज ऑस्कुलम, ठीक है। ओके, एंड हम लोगों को और क्या दिखाई दे रहा है? एक ये लेयर दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, एक ये लेयर दिखाई दे रहा है, एक अंदर के तरफ है, मतलब ये जो लेयर है, ब्लू में जो लेयर है, ये लेयर क्या कर रहा है? इट इज लाइनिंग द स्पॉन्जोसील, स्पॉन्जोसील को लाइन कर रहा है। एंड एक बाहर का लेयर हम लोग को दिखाई दे रहा है। तो बाहर का जो लेयर दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग क्या बुलाते हैं? बाहर का लेयर जो हम लोग को दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग बुलाते हैं क्या? इसको हम लोग बुलाते हैं पिनाकोडाम, ठीक है। ये जो बाहर का लेयर है, इसको हम लोग पिनाकोडाम बुलाते हैं, ठीक है। अंदर का जो लेयर है, इसको हम लोग बुलाते हैं क्या? अंदर का लेयर को हम लोग बुलाते हैं कोआनोडाम, ठीक है। अच्छा, ये जो पिनाकोडाम है, ये पिनाकोडाम क्या है? ये पिनाकोडाम है एक्टोडाम लाइक लेयर, ठीक है। ये प्रॉपर एक्टोडाम नहीं है, ये एक्टोडाम लाइक लेयर है। दैट इज द रीजन जब हम लोगों ने डिप्लोब्लास्टिक एनिमल के बारे में पढ़ा था, तो उसमें मैंने स्पॉन्जेस को डिप्लोब्लास्टिक में ऐड नहीं किया, क्योंकि स्पॉन्जेस में डेफिनिट एक्टोडाम नहीं होता है, एक्टोडाम जैसा कुछ होता है। क्वानोडाम जो है, क्वानोडाम को हम लोग क्या बुलाएंगे? ये हो जाएगा क्या? एंडोडाम लाइक लेयर, ठीक है। तो देखो, एक्टोडाम और एंडोडाम दोनों के बीच में क्या प्रेजेंट था? एक फ्लूइड लाइक लेयर प्रेजेंट था कि नहीं डिप्लोब्लास्टिक एनिमल में, और उस फ्लूइड लाइक लेयर को हम लोगों ने क्या बुलाया था? मेसोग्लिया, है ना। तो यहाँ पे भी पिनाकोडाम और क्वानोडाम का जो बीच का ये वाला जो रीजन है, ये वाला जो रीजन है बीच का, क्वानोडाम एंड पिनाकोडाम का बीच का जो लेयर है, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मेसोग्लिया लाइक लेयर। इसको हम लोग क्या बुलाते हैं? इसको हम लोग बुलाते हैं मेसोहाइल लेयर, और ब्रैकेट में मैं लिख के रख सकता हूं, ये है मेसोग्लिया लाइक लेयर, ठीक है। इन लेयर्स के बारे में, इन डाम्स के बारे में हम लोग अभी और एक्सटेंसिवली और ब्रॉडली डिस्कस करेंगे। यहां पे मैं बस इनका बॉडी होता कैसा है मैं सिर्फ वो समझा रहा हूं, ठीक है। नाउ ये जो तुम्हारा क्वानोडाम तुम लोग देख रहे हो, ये क्वानोडाम एक सेल को बनाता है, ठीक है ना। और वो जो सेल है, वो सेल अंदर के तरफ ऐसे करके प्रेजेंट रहता है। ये जो अंदर का तरफ का जगह है, वो ऐसे करके अंदर के तरफ प्रेजेंट रहता है। ये वाला सेल है ना, पूरा आउटलाइन में प्रेजेंट रहेगा, मैंने बस कुछ ही बनाया है। ये जो सेल है, इस सेल को हम लोग क्या बुलाते हैं? इसको हम लोग बुलाते हैं कॉलर सेल्स, और यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज व्हाट? कॉलर सेल्स, या फिर इसको हम लोग और क्या बुला सकते हैं? इस सेल को हम लोग बुला सकते हैं कॉलर सेल या क्वानोसाइट्स, ठीक है ना। तो अच्छे से देखना पड़ेगा कि मैं किसको क्या बोल रहा हूं, ठीक है। ये जो ब्लू वाला लेयर है, उसको क्वानोडाम बुलाया है। उस लेयर से अंदर के तरफ एक सेल ये लेयर बना के
रेडी रखता है, और उस सेल का नाम क्या है? कॉलर सेल्स, या फिर उसको हम लोग क्या बुलाते हैं? क्वानोसाइट्स बुलाते हैं, ठीक है ना। और ये जो कॉलर सेल्स एंड क्वानोसाइट्स है, ये कॉलर सेल या क्वानोसाइट है कैरेक्टरिस्टिक सेल ऑफ दिस फाइलम, ठीक है। अब ये कैरेक्टरिस्टिक सेल क्या है? देखो, हर एक फाइलम का उसका एक स्पेशल सेल होगा और होना जरूरी भी है। वो सेल इस एनिमल का मेन कैरेक्टर माना जाता है, एंड ये सेल बाकी किसी में नहीं पाया जाएगा। ये जो कॉलर सेल या क्वानोसाइट्स को मैंने जो कैरेक्टरिस्टिक सेल बोला है, मैंने क्यों बोला है? क्योंकि ये जो सेल है, ये सेल बाकी और किसी फाइलम में नहीं पाया जाएगा, और यही सेल इस फाइलम का मेन सेल है। बिकॉज अगर ये सेल बाकी किसी फाइलम में नहीं पाया जाए, सिर्फ अगर इसी फाइलम में पाया जाए, तो ये सेल हम लोग को जिस भी ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलेगा, हम लोग तुरंत बोल सकते हैं कि ये एक स्पॉन्ज है। बाकी कैरेक्टर देखे बिना अगर हम लोगों ने कोई एक ऑर्गेनिज्म को उठाया और उस ऑर्गेनिज्म में अगर हम लोग को ये सेल मिला, तो बाकी कैरेक्टर देखने का जरूरत ही नहीं है। ये सेल जिस फाइलम में है, वो फाइलम क्या होगा? स्पॉन्जेस होगा। सिमिलरली जब हम लोग सिलेंटेरिडा में जाएंगे, वहां पे भी हम लोग को एक कैरेक्टरिस्टिक सेल मिलेगा, स्टिंगिंग सेल। समझ में आया? नेक्स्ट फाइलम में जाएंगे, वहां पे भी एक कैरेक्टरिस्टिक सेल मिलेगा, कुछ और नाम होगा। तो हर एक फाइलम का जो कैरेक्टरिस्टिक सेल है, ठीक है, वो उस फाइलम को रिप्रेजेंट भी करता है, और वो सेल सिर्फ उसी फाइलम में पाया जाता है। ऐसा सेल को हम लोग क्या बुलाते हैं? कैरेक्टरिस्टिक सेल, कैरेक्टरिस्टिक फीचर, ये सब टर्मिनोलॉजी से हम लोग इसको बुलाते हैं, ठीक है। तो मोटा मोटी जो भी स्ट्रक्चर्स हम लोग को चाहिए इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द बॉडी फॉर्म, वो मैंने ड्रॉ कर लिया। अब मैकेनिज्म समझो। ये जो ऑर्गेनिज्म है, ये ऑर्गेनिज्म अपना बेसल डिस्क के मदद से, ये ऑर्गेनिज्म सबस्ट्रेटा के साथ अटैच रहेगा। पानी के एकदम बॉटम में ये अटैच्ड है, ठीक है। अटैच रहेगा, मूवमेंट नहीं करेगा, लोकोमोशन नहीं करेगा, तो खाना कैसे खाएगा? खाना खाने के लिए बॉडी ने क्या किया है? एक अजब जुगाड़ लगाया है। क्या है ये जुगाड़? ये ऑर्गेनिज्म मान लेते हैं इस तरीके का सबस्ट्रेटा के साथ ये ऑर्गेनिज्म अटैच है, ठीक है। ये जो मैंने ब्लैक में बनाया है, लेट अस कंसीडर कि ये सबस्ट्रेटा है, उसके साथ अटैच है, ठीक है। अच्छा, ये जो पोर्स है, इन पोर्स का क्या सिग्निफिकेंस है? पोर्स का सिग्निफिकेंस ये है कि ये ऑर्गेनिज्म तो हिलेगा डुलेगा नहीं, एक जगह से दूसरा जगह जाएगा नहीं, ठीक है। तो ये जो पोर्स है, इस पोर को ये ऑर्गेनिज्म मोस्ट ऑफ द टाइम ओपन रखेगा। तो जैसे ही इन पोर्स को ये ऑर्गेनिज्म मोस्ट ऑफ द टाइम ओपन रखेगा, ये जो जगह है, इस जगह में क्या प्रेजेंट है? इस जगह में प्रेजेंट है वाटर, क्योंकि ये ऑर्गेनिज्म एक्सक्लूसिवली एक्वाटिक कंडीशन में रहता है, तो यहाँ पे प्रेजेंट है वाटर। ये वाटर क्या करेगा? ये वाटर आके इसका जो ये पोर है, ऑस्टिया, इस पोर के थ्रू ये वाटर अंदर जाएगा। इस तरीके का वाटर को हम लोग क्या बुलाते हैं? इस तरीके के वाटर को हम लोग बुलाते हैं इनग्रेसिंग वाटर। इनग्रेसिंग वाटर माने जो वाटर खुद वाटर करंट के वजह से एक ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर चला जाता है, ठीक है। ये ऑर्गेनिज्म इस वाटर को खींच नहीं रहा है, ये वाटर अपना करंट के वजह से इन पोर्स के थ्रू इसके बॉडी के अंदर आ रहा है। इस तरीके के वाटर को हम लोग क्या बुलाएंगे? इनग्रेसिंग वाटर। कि वाटर खुद अपने मर्जी से, खुद वाटर करंट के वजह से आके इन पोर्स के थ्रू घुस रहा है, किधर? स्पॉन्ज के बॉडी के अंदर, ठीक है। तो ये इनग्रेसिंग वाटर आएगा, आके इन ऑस्टिया के थ्रू अंदर घुसेगा, ठीक है। और अंदर घुस के कहा जाएगा? यहां जाएगा। ये क्या है? ये है स्पॉन्जोसिल, ठीक है ना। अब ये वाटर जब आके इन ऑस्टिया के थ्रू अंदर घुसेगा, तो ये वाटर अपने साथ लेके आएगा क्या? फूड, है ना। और भी चीजें लेके आएगा, गैसेस, फूड, ये सब लेके आएगा। फूड, और मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? फूड लिख सकता हूँ। उसके बाद में लिख सकता हूँ ऑक्सीजन, फूड, ऑक्सीजन, ये लेके आएगा। यही तो चाहिए एक सेल का बेसिक सर्वाइवल के लिए। सेल को क्या चाहिए? C6H12O6 ग्लूकोज खाना, और उसको तोड़ने के लिए क्या चाहिए? 6CO2, 6O2, ये पढ़ा है कि नहीं तुम लोगों ने? C6H12O6 प्लस 6O2 ब्रेक कर देता है ग्लूकोज को। उस तरफ हम लोग को क्या मिलता है? 6CO2, 6H2 एंड ATP। वो ATP सेल क्या करेगा? अपना मेटाबॉलिज्म, अपना फंक्शंस, अपना सर्वाइवल के लिए यूज करेगा। CO2 को निकाल देगा, H2O को अपने अंदर रख लेगा एज अ मेटाबॉलिक वाटर। कभी ना कभी काम आएगा वो पानी, ठीक है ना। तो ये जो ऑर्गेनिज्म है, ये ऑर्गेनिज्म तो वैसे भी सिर्फ सेल से ही बना हुआ है ना। और सेल्स को सर्वाइवल के लिए क्या चाहिए? फूड एंड ऑक्सीजन। वो लेके इसके बॉडी के अंदर कौन आके घुसेगा? ये जो इनग्रेसिंग वाटर आ रहा है, वो अपने साथ फूड एंड ऑक्सीजन लेके आके इन ऑस्टिया के थ्रू इसके अंदर घुस जाएगा। जैसे ही वाटर ऑस्टिया के थ्रू अंदर आया, ये जो ऑस्कुलम है, ये ऑस्कुलम हो जाएगा छोटा, नैरो। क्यों? क्योंकि ऑस्कुलम अगर बड़ा रहेगा तो जो पानी आएगा वो तुरंत निकल के नहीं चला जाएगा,
तो ये ऑर्गेनिज्म नहीं चाहता है कि जो पानी ऑस्टिया के थ्रू इसके बॉडी के अंदर आएगा वो तुरंत निकल के चला जाए। तो ये ऑर्गेनिज्म क्या करता है, देखो इंग्रेसिंग वाटर जैसे ही बॉडी के अंदर घुसता है ये ऑस्कुलम को नैरो कर लेता है। जैसे ऑस्कुलम नैरो हो जाएगा पानी अंदर क्या होगा, स्टॉक टाइप होने लगेगा, स्टोर टाइप होने लगेगा। वो जो पानी है उस पानी में क्या प्रेजेंट है, फूड प्रेजेंट है। इस फूड को क्या करेगा, ये जो सेल है कॉलर सेल, ये कॉलर सेल इस फूड को अपना जो ये जो निकाला है स्ट्रक्चर, ठीक है, कॉलर सेल को ब्रॉडली मैं बाद में ड्रॉ कर रहा हूं। ये जो स्ट्रक्चर निकाला है, इस स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है फ्लेजेला, ये जो निकला है ऐसे करके जो मैंने दिया है ये है फ्लेजेला। फ्लेजेला की मदद से फूड को ट्रैप करता है पानी से, और ट्रैप करके अपने अंदर उस फूड को डाइजेस्ट कर लेगा। देखो कनेक्ट करो, डाइजेशन क्या बोला था, स्पॉन्जेस का डाइजेशन इंट्रासेलुलर। देखो पानी जब आके अंदर घुसा, पानी अपने साथ फूड लेके आया, और ये जो फूड है इस फूड को ये कॉलर सेल अपना फ्लेजेला के मदद से क्या करेगा, ट्रैप करेगा, ट्रैप करके अपने अंदर ले लेगा और अपने अंदर इस फूड को डाइजेस्ट कर देगा। तो डाइजेशन क्या हो रहा है सेल के अंदर, कैसा डाइजेशन, इंट्रासेलुलर। फूड ट्रैपिंग खत्म होने के बाद ऑस्कुलम खुल जाएगा, और खुलने के बाद जो पानी अंदर आया था वो पानी बाहर निकल जाएगा, द वाटर विल गो आउट। जैसे ही पानी बाहर चला जाएगा इसका अंदर का जगह फिर से खाली हो गया, नया वाटर अंदर आ जाएगा। फिर उस नया वाटर से अंदर आने के साथ साथ ऑस्कुलम नैरो, कॉलर सेल फूड ट्रैपिंग खल्लास, ऑस्कुलम ओपन, पानी आउट। समझ में आया ना। तो इस तरीके का है इनका वाटर फ्लो, कि इंग्रेसिंग वाटर आएगा, आके घुसेगा किसके थ्रू, ऑस्टिया के थ्रू। घुसने के साथ साथ पानी कहाँ जाएगा, स्पोंजोसिल। जब पानी स्पोंजोसिल में जाएगा तो ऑस्कुलम नैरो हो जाएगा, सो दैट पानी स्पोंजोसिल में स्टॉक हो। और एक बार जब पानी स्पोंजोसिल में स्टॉक होना चालू होगा, कॉलर सेल अपना फ्लेजेला के मदद से फूड को उस पानी से क्या करेगा, ट्रैप करेगा, एब्जॉर्ब करेगा और अपने अंदर डाइजेशन कर लेगा। तो इंट्रासेलुलर डाइजेशन, एक बार फूड ट्रैपिंग हो गया, ठीक है, फिर ऑस्कुलम खुल जाएगा, पानी आउट हो जाएगा। तो स्पोंजोसिल हम लोग क्या बोल सकते हैं, स्पोंजोसिल, ऑस्कुलम आउट, पानी जो है वो बाहर चला गया, नया पानी अंदर आएगा। दिस इज द बॉडी फॉर्म, दिस इज हाउ दे वर्क, ठीक है ना। अब कॉलर सेल को हम लोग थोड़ा ब्रॉडली डिस्कस करेंगे। ये जो पिनाकोडाम क्वानोडाम है इसको थोड़ा ब्रॉडली डिस्कस करेंगे, मेसोहाइल लेयर को ब्रॉडली डिस्कस करेंगे। एंड बॉडी फॉर्म में जो मैंने तुम लोग को एक सिस्टम के साथ इनडायरेक्टली जोड़ दिया, और वो सिस्टम क्या है, उस सिस्टम का नाम है कैनल सिस्टम, ठीक है। ये जो सिस्टम का नाम है, इस सिस्टम का नाम है क्या, इस सिस्टम का नाम है कैनल सिस्टम। ये सिस्टम क्या है, ये सिस्टम है यही, ये जो पानी का आवन जावन हो रहा है, आवंती जावंती, पानी अंदर घुस रहा है, बाहर निकल रहा है, और ये पानी का अंदर घुसना और बाहर निकलने में इस ऑर्गेनिज्म को फूड मिल रहा है, इस ऑर्गेनिज्म को ऑक्सीजन मिल रहा है। ये जो पानी अंदर आके घुसा उसमें फूड है, फूड को इसने ट्रैप किया, उस पानी में ऑक्सीजन भी तो है, ऑक्सीजन ये सेल ले लेगा, लेके ये जो फूड को ये सेल एब्जॉर्ब करेगा, इस फूड का ब्रेकडाउन में ये ऑक्सीजन क्या करेगा, मदद करेगा। इस सेल के अंदर क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होगा। ये फूड मान लेते हैं क्या है, C6H12O6, इस फूड को इस सेल ने एब्जॉर्ब किया, इसको तोड़ने के लिए क्या चाहिए होगा, इस सेल को ऑक्सीजन। तो C6H12O6 प्लस 6O2 क्या फॉर्म होगा, 6CO2। वो 6CO2 ये सेल क्या करेगा, यहां दे देगा, ये जो पानी निकल के जाएगा, ये पानी क्या करेगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड को अपने साथ लेते हुए निकल जाएगा। तो ये जो पानी का इसका बॉडी के अंदर आने का एंड जाने का जो सिस्टम है, इस सिस्टम को हम लोग क्या बुलाते हैं, इस सिस्टम को हम लोग बुलाते हैं कैनल सिस्टम। एंड इस ऑर्गेनिज्म का एंटायर सर्वाइवल इज डिपेंडेंट ऑन व्हिच सिस्टम, कैनल सिस्टम। क्योंकि अगर पानी नहीं आया इसके बॉडी के अंदर तो फूड नहीं आएगा, ऑक्सीजन नहीं आएगा, तो ये ऑर्गेनिज्म खाएगा क्या, बचेगा कैसे, सर्वाइवल कैसे करेगा। तो इस ऑर्गेनिज्म का एंटायर सर्वाइवल इसका बॉडी फॉर्म से जुड़ा हुआ है, बॉडी फॉर्म से जुड़ा हुआ है पानी का आना जाना, दैट इज कैनल सिस्टम। और कैनल सिस्टम के वजह से ये ऑर्गेनिज्म अपना खाना खा पा रहा है, रेस्पिरेशन कर पा रहा है, जिसके वजह से ये ऑर्गेनिज्म जिंदा है, ठीक है। सो आई होप तुम लोग का बॉडी फॉर्म के साथ ये सब चीज तुम लोग का कनेक्ट हो गया। अब नेक्स्ट डिस्कशन में हम लोग आज दो और डिस्कशन करेंगे, एक ये कॉलर सेल दिखने में होता कैसा है, ठीक है, एंड दूसरा हम लोग डिस्कशन करेंगे कि ये जो पिनाकोडाम और क्वानोडाम है इनका थोड़ा ब्रॉड डिस्कशन करेंगे, एंड देखते हैं कहां तक आज डिस्कस कर सकते हैं। आई होप ये वाला पोर्शन तुम लोग का क्लियर हुआ है। ध्यान से वीडियो को सुनना और ये सब चीज को अच्छे से एब्जॉर्ब करने का कोशिश करना। यू कैन मेक नोट्स, ओके। आई एम मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट, पोज कर दूंगा, ठीक है, तुम लोग नोट्स बना लेना, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बना लिया है कॉलर सेल को, ठीक है, और कॉलर सेल को समझाने के लिए मैंने ये रेफरेंस भी यूज किया है कि अगर ये हम लोग स्पॉन्ज का बॉडी समझे,
और ये जो सेल अंदर दिखाई दे रहा है ये सेल ऐसा है, इसको ऐसे ड्रॉ किया है। देखो ये सेल उधर ऐसा है, कॉलर सेल फेसिंग टुवर्ड्स स्पोंजोसील। नाउ फेसिंग टुवर्ड्स स्पोंजोसील वाले कॉलर सेल को हम लोगों ने यहाँ पे ऐसे ड्रॉ किया है, ठीक है ना। तो ऐसे जब ड्रॉ करेंगे और थोड़ा सा जूम करके देखेंगे ये सेल हम लोग को कुछ ऐसा दिखाई देगा। इस सेल में देखो क्या क्या देख रहे हो, इस सेल में तुम लोग देख रहे हो ये है इसका क्या, ये है इसका सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के अंदर ये जो डॉट डॉट करके मैंने दिया है, दीज आर साइटोप्लाज्म एंड सेल ऑर्गेनेल्स। ओके, अंदर में प्रेजेंट है न्यूक्लियस जो सेल का फंक्शंस को डायरेक्ट करेगा। अंदर प्रेजेंट है फूड वैक्यूल जहां पे इंट्रा सेलुलर डाइजेशन होगा, ठीक है। नीचे में प्रेजेंट है कुछ प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस, इसका काम क्या है आई विल एक्सप्लेन यू। ऊपर प्रेजेंट है कुछ सीलिया का टाफ्ट्स, ठीक है। सीलिया मैं ब्रैकेट में लिखूंगा टाफ्ट्स ऑफ सीलिया, मतलब बहुत सारा सीलिया एक साथ भरती है एंड उन सीलिया के बीच से निकला है एक लंबा सा प्रोजेक्शन जिसको हम लोगों ने क्या बुलाया है, इसको हम लोग बुला रहे हैं फ्लैजेला, ठीक है। आई होप ये समझ में आया होगा कॉलर सेल का स्ट्रक्चर। अब क्या होगा, जैसे ही इनग्रेसिंग वाटर अपने साथ फूड लेके आके घुसेगा, यहाँ पे फूड लेके आके घुसेगा, ठीक है। अब इनग्रेसिंग वाटर जो है, अब वाटर तो फूड ही सिर्फ लाएगा ऐसा क्या बात है, फूड के साथ बोले पत्थर ला रहा है, फूड के साथ बोले कुछ मतलब नॉन ईटिंग सब्सटेंसेस भी ला रहा है, ठीक है ना। तो जैसे ही ये फूड या फिर जो भी सब्सटेंसेस है, नॉन ईटिंग सब्सटेंसेस एज वेल एज फूड, ऐसे बोल देते हैं, नॉन ईटिंग सब्सटेंसेस एज वेल एज फूड व्हेन कम्स अलोंग विद द इंक्रीजिंग वाटर इनसाइड द स्पोंजोसील, the osculum narrows down and the functioning of collar cell starts. What collar cell will do? Collar cell का nucleus is going to direct what? Collar cell का nucleus is going to direct the flagellum that you start trapping. तो flagellum क्या करेगा, ऐसे करके ट्रैप करना चालू करेगा। तो जब ये flagellum ऐसे करके ट्रैप करके लाएगा तो ये flagellum अपने साथ क्या लाएगा, फूड लाएगा, पीबल्स ला सकता है इत्यादि, ठीक है कि नहीं, नॉन एडिबल सब्सटेंसेस, ठीक है, नॉन मतलब जो फूड नहीं है ऐसा सब्सटेंसेस भी ला सकता है, ठीक है। तो ये जो सीलिया है, जब ये फ्लैजेला ऐसे करके ट्रैप करके लेके आएगा फूड एंड नॉन फूड पार्टिकल्स को, तो ये सीलिया का काम क्या है, सीलिया अपने थ्रू सिर्फ ईटिंग सब्सटेंसेस, फूड रिलेटेड सब्सटेंसेस को ही अपने थ्रू अंदर जाने देगा। बाकी जो पीबल्स नॉन फूड सब्सटेंसेस होगा उसको वो क्या करेगा, यहीं पे रोक देगा। समझ में आया ना, यहीं पे रोक देगा, जो नॉन फूड पार्टिकल्स है उसको यहीं पे रोक दिया जाएगा। द सीलिया विल नॉट अलाउ द नॉन फूड पार्टिकल्स टू पास थ्रू इट, ओनली द फूड पार्टिकल एंड स्पेशली द स्मॉलर ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस विल बी अलाउड टू पास थ्रू। तो चला गया, वो अंदर घुसेगा, घुस के कहाँ आएगा, फूड वैक्यूल में आएगा, इसके अंदर डाइजेशन होगा, फूड वैक्यूल में उस फूड को डाइजेस्ट किया जाएगा। आफ्टर द डाइजेशन इज डन, उसके बाद ये जो प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस है, ये प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस के थ्रू ये कॉलर सेल जो भी डाइजेस्टेड सब्सटेंसेस है उनको अपना प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस के थ्रू ये सेल अपने दूसरे सेल्स को, इसके बॉडी में तो और भी सेल्स होगा ना, सिर्फ एक सेल है या सिर्फ कॉलर सेल ही है ऐसा तो नहीं है, शायद पिनाकोडाम में कुछ और सेल्स भी प्रेजेंट है जो हम लोग आगे पढ़ेंगे है। मेसोहाइल लेयर जो मैंने लिखा है, मेसोहाइल लेयर में देयर आर सो मेनी सेल्स प्रेजेंट, ठीक है ना। उन सेल्स को भी तो अपना सर्वाइवल के लिए खाना चाहिए होगा, तो वो खाना उन सेल्स को कैसे मिलेगा, वो लोग तो फूड के कांटेक्ट में नहीं आ रहा है, तो ये सेल वो जिम्मेदारी लेता है। इसलिए इस सेल को हम लोग क्या बुलाते हैं, कैरेक्टरिस्टिक सेल बुलाते हैं। ये सेल बोलता है कि मेरे भाई बहनों को, इसका बाकी जो दूसरा सेल है वो इसका भाई बहन हुआ कि नहीं, तो मेरे भाई बहनों को खाना पहुंचाने का काम मेरा है, तुम लोग को डाइजेशन भी नहीं करना है, तुम लोग को कुछ भी नहीं करना है, तुम लोग बस अपना जो भी रेस्पेक्टिव काम है वो करो, तुम लोगों तक खाना पहुंचाना मेरा काम है, आई विल सेंड द फूड टू यू। तो ये सेल वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है और लेके क्या करता है, जब जब इंग्रेसिंग वाटर के थ्रू फूड अंदर आता है, ये अपना फ्लैजेला के थ्रू सब सब्सटेंसेस को ट्रैप करके पास लाता है, नॉन फूड पार्टिकल को सीलिया फिल्टर आउट कर देता है, नीचे जाने नहीं देता है, फूड पार्टिकल्स जो ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है उनको सिर्फ नीचे जाने देता है, वो नीचे आके घुसता है इसके फूड वैक्यूल में, डाइजेशन होगा, डाइजेशन होने के बाद इस सेल को जितना खाना चाहिए ये खुद अपना रख लेगा, रिमेनिंग फूड को ये क्या करेगा, अपना प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस के थ्रू अपना बाकी जो सेल्स है, बाकी सेल्स माने कौन, ये जो जगह है, इस जगह को मैंने क्या बोला, मेसोहाइल लेयर, यहाँ पे बहुत सारा सेल्स है, उन सेल्स को भेज देगा। ये जो लेयर है पिनाकोडाम में भी बहुत सारा सेल है, उन सेल्स को दे देगा, ठीक है, फिर वो सेल्स खाना खा सकता है। बाकी सेल्स
द सेल्स विच आर प्रेजेंट इन मेसोहाइल लेयर, उनमें ये एबिलिटी नहीं है कि फूड ट्रैप करके डाइजेस्ट करें। उनमें ये एबिलिटी है कि प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस के थ्रू जो ये कॉलर सेल उनको भेजेगा, वो खा के वो लोग अपना न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट पूरा कर सकता है। पिनाकोडाम का सेल का भी सेम, जो न्यूट्रिशन कॉलर सेल विल पास, वो न्यूट्रिशन खा के वो जिंदा रह सकता है बस, और वो अपना रेस्पेक्टिव काम कर सकता है। वो खुद ट्रैप करके डाइजेस्ट करेगा, ये उससे नहीं होगा। तो ये सीलिया क्या करता है, सीलिया में हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सीलिया फिल्टर्स आउट दी नॉन फूड पार्टिकल्स and allows only organic and inorganic substances to pass through it। ठीक है कि नहीं? इस मैकेनिज्म को हम लोग क्या बुलाते हैं? इस मैकेनिज्म को हम लोग बुलाते हैं क्या? इस मैकेनिज्म को हम लोग बुलाते हैं फिल्टर फीडिंग। समझ में आया? फिल्टर हो रहा है कि नहीं? फ्लैजेला ट्रैप करके फूड नॉन फूड सबको ला रहा है, लेकिन सिर्फ फूड मटेरियल्स को, वो भी जो ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज है, सिर्फ उन्हीं को पास करने दिया गया है। लार्ज फूड पार्टिकल, नॉन फूड पार्टिकल, पीबल्स, ये सबको दिया ही नहीं गया आगे नीचे जाने के लिए। सीलिया ने उनको रोक दिया। सो ये क्या हुआ? फिल्टर फीडिंग हुआ कि नहीं? सिलेक्टेबल चीजों को अंदर जाने दिया, फिल्टर टाइप का हुआ कि नहीं? एंड दैट इज द रीजन व्हाई स्पॉन्जेस आर आल्सो कॉल्ड एज, व्हाई स्पॉन्जेस आर आल्सो कॉल्ड एज, ये आल्सो कॉल्ड एज है, आल्सो कॉल्ड, मैं ऐसे लिखता हूं, अकॉर्डिंग नहीं है, आल्सो कॉल्ड है। आल्सो कॉल्ड एज व्हाट? द स्पॉन्जेस आर आल्सो कॉल्ड एज फिल्टर, क्या? स्पॉन्जेस आर आल्सो कॉल्ड एज फिल्टर फीडर्स। ठीक है, बिकॉज उनका जो कैरेक्टरिस्टिक सेल है वो उनको फिल्टर फीडिंग का फिनोमिना प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो आज मैं यहीं पे डिस्कशन रोक रहा हूं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग व्हाट आर द सेल्स प्रेजेंट इन पिनाकोडाम, व्हाट आर द सेल्स प्रेजेंट इन मेसोहाइल लेयर, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ वो जो कैनल सिस्टम बोला था, पानी का आवन जावन का जो सिस्टम जिसके ऊपर ये लोग डिपेंडेंट है, वो कैनल सिस्टम का टाइप्स वगैरह और बाकी कैरेक्टर हम लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, आई होप यहाँ तक तुम लोगों को समझ में आ रहा है। प्रॉपर नोट्स बना लो। ठीक है, एंड चीयर्स।